Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। New. So आज हमारे साथ you can hear me, Prabhu? Yeah. Yeah. Okay. Prabhu, just give me 1 minute. I will just introduce you, and then we can start. Yeah. Some devotees are new. So आज हमारे साथ हैं His Grace रामरूप प्रभु जी। प्रभु जी स्वरूप दामोदर महाराज जी के शिष्य हैं। इस्कॉन में काफी वर्षों से हैं और राधा रास बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं। इस डूइंग डेटी वर्शिप। हम लोग जो इतना राधा रास बिहारी जी का सुंदर विग्रह देखते हैं, उसका जो दर्शन देखते हैं, सब प्रभु जी के निरीक्षण में होता है। और प्रभु जी कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रभु जी का क्लास बहुत अच्छा होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। आज का श्लोक हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्लोक पढ़ लिया? नो प्रभु। राय श्लोक पढ़ लेना कोई, मेरे पास किताब आई नहीं अभी। ओके, या somebody कैन रीड प्लीज। आज का श्लोक कोई पढ़ सकता है? प्रभु श्लोक नंबर थोड़ा वापस कंफर्म करेंगे प्रभु। 327, 26। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3:27-26 एवं विदिता तत्वस्य प्रकृतिर्महिमानसां युञ्जन्तो कुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्। Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engages in material activities, because he knows the truth of the Absolute and his mind is fixed on the personality of Godhead. Hare Krishna, Prabhu Dandavat Pranam. purport पढ़ो। Okay, okay, Prabhu, okay. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Lord Kapila says that Mai Manasam, a devotee whose mind is always fixed upon the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, is called Atma Rama or Vidita Tattva. Atma Ram means one who rejoices in the self or one who enjoys in the spiritual atmosphere. Atma in the material sense means the body or the mind. But when referring to one whose mind is fixed on the lotus feet of Supreme Lord, Atma Ram means one who is fixed in the spiritual activities in relationship with the Supreme Soul. The Supreme Soul is the personality of Godhead, and the individual soul is a living entity. When they engage in reciprocation of the service and the benediction, the living entity is said to be in the Atmaram position. This Atmaram position can be attained by one who knows the truth as it is. The truth is that the Supreme Personality of Godhead is the enjoyer and that the living entities are meant for his service and enjoyment. One who knows this truth and who tries to engage all resources in the service of the Lord escapes all material reactions and influences of this material mode of nature. An example may be cited in this connection. Just as a materialist engages in constructing a big skyscraper, a devotee engages in constructing a big temple for Vishnu. Superficially, the skyscraper constructor and the temple constructor are on the same level, for both are collecting wood, stone, iron, and other building materials. But the person who constructs a skyscraper is a materialist, and the person who constructs the temple of Vishnu is Atmaram.
The materialist tries to satisfy himself in relation to his body by constructing a skyscraper. The devotee tries to satisfy the supreme super self, the supreme person of Godhead, by constructing the temple. Although both are engaged in the association of material activities, the devotee is liberated and the materialist is conditioned. This is because the devotee who is constructing the temple has fixed his mind upon the supreme personality of Godhead, but the non-devotee who is constructing the skyscraper has fixed his mind in sense gratification. If while performing any activity, even in the material existence, one's mind is fixed upon the lotus feet of personality of Godhead, one will not be entangled or conditioned. The worker in devotional service and full Krishna consciousness is always independent of the influence of the material nature. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ये श्लोक में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए थे परपट में, बहुत ही अच्छे तरह। आत्माराम जैसा जैसा कि भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जो मेरा सेवा में युक्त रहता है वो ये 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे संसार में सबसे सबका सब दुख का कारण है, सब दुख का कारण है कि तमोगुण और रजोगुण में रहने से ये उनका प्रभाव से हमको दुख प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जैसे कि ये तीनों गुणों को वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम उपपद्यते अनामयम सो सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, जो सत्वगुण में रहता है वो जो सत्वगुण है निर्मल है ना। प्रकाशम अनामयम, फिर वो सुख हमेशा सुखी रहता है। सुख संगेन बध्नाति, लेकिन वो बंधन में, वो भी बंधन में है लेकिन वो सुख से बंधन है, बंध है। उनको रजोगुण और तमोगुण के वजह से जो काम और लोभ, ये रजोगुण और कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप विद्येन हि वैरिणम्। भगवान तीसरा अध्याय भगवद गीता में कहते हैं कि काम और क्रोध रज और तमोगुण के प्रभाव से हमारा हृदय में निवास करते हैं। फिर जब तक काम और क्रोध रहते हैं हम सुखी रह नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग सुखी रहना चाहते हैं, भक्त लोग भी कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोचते हैं हम हार्ड वर्क करेंगे, पैसा कमाएंगे, रिच हो जाएंगे, धनी बन जाएंगे तो हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है। सुखी रहने के लिए सत्वगुण में आना पड़ेगा, सत्वगुण में आना पड़ेगा। फिर सत्वगुण को त्याग के हमको विशुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, तभी हम आत्माराम हो सकते हैं। आत्माराम ये जब है ना नारद मुनि वर्णन करते हैं असंकल्पेत जयेत कामान, असंकल्पेत जयेत कामान, क्रोधम काम विवर्धनात्, अर्थम अनर्थ ईक्ष लोभम भवम भयम तत्वावमर्शनम्, अन्वीक्षस्य शोकमोहौ, अन्वीक्षस्य शोकमोहौ, मदम महद उपासते, महद उपासते, योगाभ्यासेन अंतरेण मौनम हिंसाम कामादि अनिहय, कृपया भूतजम दुःखम, कृपया भूतजम दुःखम दैवम जह्यात् समाधिना, आत्मजम योग वीरेण निद्राम सत्व निवेशया। और रजस्तमश्च सत्वेन
रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वेन उपसमेन च एतत् सर्वं गुरुभक्तौ पुंसां जय अंजसा जयेत। मैं ये श्लोकों का अर्थ बताता हूँ। नारद मुनि, जैसा कि हमारा दुख का कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रजोगुण, तमोगुण, निद्रा, ये सब है। फिर और आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये सब के कारण की वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं, आत्माराम नहीं बन पा रहे। फिर नारद मुनि सोल्यूशन दिए हैं 7वां स्कंद भागवतम में 15 अध्याय। याद रखना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम जब इंस्ट्रक्शंस याद रखते हैं तभी हम हमारा लाइफ में लागू कर सकते हैं ना। याद ही नहीं रहेगा तो हम फॉलो कैसा करेंगे, राइट? इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ आज वापस पढ़ सकते हैं 7वां अध्याय 7वां स्कंद 15 अध्याय में इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो नारद मुनि बोल रहे हैं असंकल्पे जयेत कामान, संकल्प करने से काम को जीत सकते हैं बाय डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जी लिखते हैं डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जी लिखते हैं 9वां अध्याय में भगवद गीता, हम जब एकादशी का दिन संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय रहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हम जब काम से मुक्त होना चाहिए चाहते हैं, फिर हमको डिटर्मिनेशन चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न नहीं खाना चाहते हैं, निर्जल एकादशी का दिन फास्टिंग करना चाहते हैं, उसको भूख नहीं लगता है क्योंकि वो डिटरमिन्ड है। वैसा ही हमको ये लस्टी अफेयर्स में भाग नहीं लेना चाहिए करके डिटर्मिनेशन रखने से, स्त्री संग नहीं करेंगे करके संकल्प करने से हम दूर रह सकते हैं, उससे उसको काम को जीत सकते हैं। और कामा क्रोधम का काम विवर्धनात् इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन त्यागने से हम क्रोध को जीत सकते हैं। और अर्थ संपादन मीन्स धन दौलत, धन इकट्ठा करने से, जरूरत से ज्यादा धन संग्रह करने से उसको क्या नष्ट है, उसका क्या डिसएडवांटेजेस है ना, क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ता है, फिर उसके बारे में डिस्कस करने से लोभ को हम त्याग सकते हैं। और कृष्ण तत्व का चर्चा करने से भय को त्याग सकते हैं। और अन्वीक्षस्य शोक मोह, खास करके प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरी अध्याय भगवद गीता का पाठ करने से, भगवद गीता का ऊपर चर्चा करने से, खास करके सेकंड चैप्टर भगवद गीता पढ़ने से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं शोक और मोह से मुक्त हो सकते हैं। सेकंड चैप्टर भगवद गीता आत्म तत्व के बारे में, तो मैं याद रखना कृष्ण तत्व के बारे में या कृष्ण तत्व के बारे में चर्चा करके हम भय को त्याग सकते हैं। आत्म तत्व के बारे में जो खास करके दूसरी अध्याय का आत्म तत्व को चर्चा करके हम शोक और मोह को त्याग कर सकते हैं। दूसरी अध्याय का पाठ करने से लाभ है, श्रुति फल वही है, शोक और मोह से मुक्त हो जाते हैं। और मद जो प्राइड है, महान शुद्ध भक्तों का सेवा करने से हम मद से मुक्त हो सकते हैं। और मौन रहने से हमारा जो योगाभ्यास करने में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमको
और एनवी, अभी एनवी है, मात्सर्य, यू नो, ये हिंसा, कामादि, सो सेंस एंजॉयमेंट, वापस सेंस एंजॉयमेंट को त्याग करके, जैसे कि क्रोध को हम एनवी, मात्सरी को त्यागने से हम क्रोध को जीत सकते हैं, उधर काम विवद बनाते हैं। और एनवी को हम सेंस एंजॉयमेंट, जैसे इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके मात्सरी, द्वेष को हम त्याग सकते हैं। और कृपया भूतजम दुखम, कृपया भूतजम दुखम, टॉलरेंस, सहन शक्ति की वजह से और दया की वजह से, दया रखने से हम आदि भौतिक क्लेश को त्याग सकते हैं। और और आदि आदि दैविक क्लेश को मेडिटेशन, ध्यान करने से त्याग सकते हैं। और योग और प्राणायाम करने से, आसन और प्राणायाम करने से हम आध्यात्मिक क्लेश को त्याग सकते हैं। और सत्वगुण में आने से निद्रा को त्याग सकते हैं, जीत सकते हैं। और ये सारे चीज के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, हम सब एतत् सर्वम गुरु भक्तो, एक शुद्ध भक्त का सेवा करने से हम ये सारे चीजों को हम त्याग सकते हैं। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक शुद्ध भक्त का सेवा करना। गुरु भक्त यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपेन पदौ गुरु मर्त्यालिभिर असद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचलम। हममें से कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी जैसा शुद्ध भक्त को साधारण मानव समझेगा तो जो भी काम करते हैं वेस्ट हो जाता है। जैसा कि एक हाथी नहाने के बाद वापस धूली अपने ऊपर डालता है, वैसा ही सब वेस्ट हो जाता है। हम जब प्रभुपाद जी को साधारण मानव समझेंगे, ऐसा ऐसा बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शंस नारद मुनि देते हैं। जब एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा, सारे कर्मों का फल मुझे त्याग के मुझे देके मेरा भावना में स्थित होके और भौतिक इच्छाएं त्याग करके और लेथार्जी, लेजीनेस छोड़ के त्याग के मेरा सेवा में युक्त हो, युद्धस्व विगत ज्वरा, ऐसा करके कृष्ण भगवान आदेश देते हैं अर्जुन को। ये श्लोक है तीसरा अध्याय, 30वां श्लोक है। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं एसेंस ऑफ भगवद गीता, पूरा भगवद गीता का सार इस श्लोक में दिया है करके प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं। बहुत ही सुंदर परपोर्ट लिखते हैं, आप लोग जाके वापस पढ़ लीजिएगा। फिर एक डिवोटी, एक व्यक्ति क्लास में बैठे थे, उन्होंने जब प्रश्न उत्तर का बारे में पूछा था, उन्होंने पूछा था कि हाथ ऊपर किए थे, ये जो श्लोक आपने कोट किए थे इसको प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना चाहिए, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछे थे आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, फिर जब मंथ एंडिंग में आपको सैलरी मिलता है मुझे लाके दे देना। फिर वही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसा करके तो सब लोग सोच रहा था मजाक करेंगे। फिर उनका नाम था, प्रोफेसर का नाम था निशिकांत सन्याल, प्रोफेसर निशिकांत सन्याल। हमारे प्रभुपाद जी के घना मित्र थे वो, शुद्ध है ना।
दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, श्री प्रभुपाद जी और ये निशिकांत सान्याल। फिर निशिकांत सान्याल ने अगला महीना जब मंथ एंडिंग में जब पगार मिला था, उस समय यू नो 800 रुपए का पगार मिलता था उसको, प्रोफेसर थे। फिर वो जाके पूरा पैसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथ में दे दिए थे। हर महीने पूरा जिंदगी, पूरा जीवन भर उन्होंने तो अपना पगार इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर का हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने जब उनका बेटी बड़ी हो गई थी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका विवाह संपन्न किए थे। और अ, अ, क्या नाम है, ये अमृत बाजार पत्रिका में न्यूज लिखे थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना शिष्य का पुत्री का शादी धूमधाम से रचाए थे करके। फिर जब उनको उसके बाद है ना फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बहुत ही प्रिय शिष्य बन गए थे। फिर एक बार कटक में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में गौड़ी मठ ओपन किए थे। इस टाइम वो लोग जब गए थे वो गौड़ी मठ वाले मधुकरी करते थे। मधुकरी में मीन्स मंथली डोनेशंस कलेक्शन करते थे। फिर एक बार सुभाष चंद्र बोस का पिताजी शरद चंद्र बोस ऐसा कुछ था उनका नाम था। वो बहुत बड़ा मशहूर लायर थे, बहुत ही धनी आदमी थे सुभाष चंद्र बोस का पिताजी। फिर निशिकांत सान्याल ने उनको मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बोला हमको मधुकरी दीजिए। फिर उन्होंने हंसी मजाक से उन्होंने बोला था आप जितना दे रहे हो उसका मैं डबल मैं दूंगा, ऐसा करके बोल दिया था। फिर निशिकांत सान्याल ने बोला मैं हर महीना 800 रुपए देता हूँ। फिर वो बोस मिस्टर बोस बेहोश हो गया था। 800 रुपए इसका मतलब 1600 रुपए देना पड़ेगा। अभी का 1600, उस टाइम का 1600 रुपए अभी तो 16 लाख रुपए होगा। इतना पेशेंट बढ़ गया था। फिर हर महीने देते थे, वो बात का पक्के पक्के होते थे। फिर श्रील प्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, क्योंकि उसको मछली खाने को बहुत ही आदत था। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला आप जाके हर महीने हर दिन राजभोग लेके जाने का। सो राजभोग खाते खाते वो मछली खाना छोड़ दिया। तो जैसा कि ऐसा फिर वो बोलते थे कभी कभी आप इतना बाहर वक्त है, आप फुल टाइम क्यों बन जाते हो, क्यों नहीं बन जाते। मतलब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत बोलते थे ऋषिकांत सन्याल कभी इनिशिएशन भी हो गया था। तुम लोगों से भी ज्यादा त्यागी आदमी है, उनको असली भक्त है वो। ऐसा प्रभुपाद जी 18 अध्याय में आई थिंक लिखते हैं नहीं देहभृता सख्यम, वो श्लोक में नहीं देहभृता सख्यम त्यक्त्वा कर्मन् अशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे बहुत कुछ डिवोटी लोग हैं, वो लोग बाहर जाके फैक्ट्री में काम करते हैं और जो भी कमाते हैं वो हमको लाके इस्कॉन को दे देते हैं। ये असली सच एलिवेटेड सोल्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं सच एलिवेटेड सोल्स दे आर रियल सन्यासीस, दे आर रियल सन्यासीस। ऐसा आत्माराम ऐसा बन सकते हैं जो व्यक्ति अपने युक्तः कर्मफला त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फलासक्तः निबध्यते। प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसलेशन में जो युक्त होके अपने कर्मों का फल को त्याग देता है कृष्ण के लिए, ऐसा व्यक्ति he will attain unadulterated peace। ऐसा लिखते हैं शांति मापनोति नैष्ठिकी।
लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से आसक्त है, फिर अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, वो हमेशा बंध जाता है और हमेशा अशांत रहता है। फिर आत्माराम का मतलब है अपने आप में आनंद लेना। यू नो जो बाकी लोग जो है उनको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स से कांटेक्ट की वजह से हमको लेना चाहते हैं, खुशी लेना चाहते हैं। फिर ऐसा आत्माराम पढ़ना चाहिए। आत्माराम बनने के लिए एक शुद्ध भक्त का सेवा करना चाहिए। ऐसे कैसा शुद्ध भक्त? जो 3 गुणों से परे है। हमारे जैसा और कोई व्यक्ति गुरु बन गया, फिर उनका सेवा करने से हमको कोई लाभ नहीं होता है। हम ऐसा व्यक्ति का सेवा करना चाहिए, जो 3 गुणों से परे है और मुक्त है, मुक्त आत्मा है। ऐसा व्यक्ति का सेवा करने से हम ये सारे चीज़ों से परे हो सकते हैं। अ, मैं और एक पास्ट टाइम बताता हूँ। अ, जगबंधु करके एक लड़का था, कलकत्ता के पास मिदनापुर ऐसे कुछ है। वो बचपन से बहुत ही दुःख पाए थे, अनाथ बन गया था। एक बार ठंडी का मौसम में हवा के झोंके की वजह से उसको कान में घुस गया था। वो बहरा बन गया था एक कान से। फिर माँ-बाप नहीं थे ऐसा, इसलिए उन्होंने सोचा था खुदकुशी कर लेंगे। फिर बहुत बहुत बार उन्होंने प्रयत्न किए थे अपने आप को मारने के लिए। ओपियम खा लिया था ज़्यादा से। फिर हमेशा कोई ना कोई बचा लेता था फैमिली मेंबर्स। फिर उन्होंने सोचा था मैं कलकत्ता जाऊँगा, उधर जाके मर जाऊँगा, क्योंकि वो ये लोग मरने नहीं दे रहे हैं ऐसे करके। फिर उन्होंने कलकत्ता आया और एक कैसा भी करके उन्होंने उसका मन बदल गया था कलकत्ता आने के बाद, मैं जीऊँगा। फिर शेंगदाना खाते थे और थोड़ा पानी पी लेता था, ऐसा भूख मिटाता था ऐसा। फिर एक ग्रोसरी शॉप में काम करने लगा। फिर ऐसा करते-करते उसको एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस मिलने के बाद अपने खुद का फैक्ट्री स्टार्ट किया था। अ, जेबी इंक्स जेबी जेबीडी इंक्स इंक बनाता था। ऐसा भगवान की कृपा से वो वहाँ बहुत बड़ा धनी आदमी बन गया था। फिर उसको डायबिटीज़ आ गया था, पैर ठीक नहीं था, बहुत सारे बीमारियाँ आ गए थे। फिर उन्होंने सोचा था मैं थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊँगा। फिर कैसा भी करके कुंज बिहारी प्रभुपाद जी श्री भक्तिसिद्धांत का बहुत ही प्रिय शिष्य थे, बहुत ही इंटीमेट शिष्य था। वो जब उस टाइम जब कलकत्ता में टीचिंग कर रहे थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी। 3 साल तक उन्होंने कही नहीं थी कि वो बहुत बड़ा धनी आदमी है। फिर 2-2 पत्नियाँ थी और बहुत बड़ा महल बनाए हुए थे इन्होंने गंगा के तट पर। ऐसा फिर भी कभी भी बोला नहीं था, ज़िक्र नहीं किए थे कि मैं बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ। 3 साल के बाद उन्होंने सूचना दी कि मैं ऐसा-ऐसा धनी आदमी हूँ। इतने साल से मैं बताए नहीं, क्योंकि अ यूजुअली साधु लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जो पैसे धनी आदमी है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसा। लेकिन आपने जो मेरे को ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ऐसे फिर बाद में 1925 में उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का लेक्चर सुने थे, कल जगन्नाथपुरी में। एक महा इम्प्रेस हो गया था। क्या उसका नॉलेज उसका फिर तुरंत उनको शिष्य बन गए थे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर। फिर बाद में उन्होंने बोला, "मैं आपके लिए मंदिर बनाऊँगा, मंदिर बनाऊँगा।" अ, उन लोगों का हिसाब से अ, अभी तक पता नहीं है, उन्होंने अ, कलकत्ता में बाग बाज़ार में मंदिर बनाए थे, मार्बल का मंदिर। आप लोग सुने होंगे, प्रभुपाद जी बहुत बार ज़िक्र किए थे।
अभी तक मालूम नहीं है वो ये जगबंधु दास कितना पैसा खर्च किए हैं वो मंदिर बनाने के लिए। हर चीज मार्बल, एकदम पैलेस। मैं 2-3 बार मैंने देखा था। बाग बाजार मंदिर मैं गया था। तो श्री भक्तिदास ठाकुर जिक्र किए थे, अरे जब से आप लोग इस टाइम कलकत्ता जाएंगे, जरूर उल्टा डंगा मंदिर में जाइएगा। प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत फर्स्ट मंदिर उल्टा डंगा में स्टार्ट किए थे, जिधर हमारा प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत को मिले थे। फिर अभी इस्कॉन वाले खरीद करके बहुत अच्छा बनाए थे। इसलिए जब भी आप कलकत्ता जाएंगे जरूर जाइएगा अ, उल्टा डंगा मंदिर में और बाग बाजार मंदिर में भी। फिर 1935 में या 34 में एक दिन मंदिर उद्घाटन होने वाला था। एक दिन पहले बहुत बीमार हो गए थे जगबंधु जी और जोर से चिल्लाने लगे, गुरु महाराज कुंज बिहारी, गुरु महाराज कुंज बिहारी। फिर दोनों प्रकट हो गए थे उनके सामने अचानक। फिर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने अपने प्राण त्याग दिए थे जगबंधु जी। और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहे थे ये तो सिद्ध पुरुष बन गया। और फिर उनका मंदिर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी मंदिर में लेके गए थे, प्रदक्षिणा करवाए थे और श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनका समाधि करवाए थे। ऐसा एक शुद्ध भक्त का सेवा करने से जगबंधु प्रभु जो मरना चाहते थे वो महान भक्त बन गया और आत्माराम बन गया और अपने सारे धन दौलत गुरु महाराज का सेवा में लगाते थे। ऐसा अ, फल के प्रति आसक्ति रखने से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन फलासक्ति त्यागने से आत्माराम बन जाएंगे, एक शुद्ध भक्त को प्रिय बन जाएंगे। फिर ऐसा व्यक्ति अ, कर्म करने से भी बंधन में फंसते नहीं, बंधन में फंसते नहीं, मुक्त हो जाता है। फिर और अपने आप ऑटोमेटिकली विशुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं और भगवान की सेवा में युक्त हो जाते हैं। अभी भी टाइम है, हो गया टाइम? Yes, Prabhu, you can go on. ऐसा व्यक्ति कितना टाइम? Another 10 minutes, Prabhu. ओके। कपिल भगवान तीसरा स्कंद भागवतम में वर्णन करते हैं कि अ, अभिसंधाय चो हिंसाम दंभम मात्सर्यम एव वा संभ्रमी भिन्नतृक् भावम मयि कुर्यात् सा तामसा। जो व्यक्ति हिंसक होता है, दंभ मीन्स प्राउड है और हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष रखता है और अ, हमेशा घमंड दिखाता है और हिंसा करता है दूसरों के प्रति, ऐसा व्यक्ति का भक्ति तमोगुण का भक्ति है, वो तमोगुणी भक्ति है। राइट? प्रभुपाद जी बोलते हैं परपोर्ट में, ऐसा डिवोटीज के साथ संग नहीं करना चाहिए जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छी नहीं है और शुद्ध भक्ति नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति के साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी भक्त है और दूर से उसको प्रणाम करके आदर देना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए। और दूसरा है विषयान अभिसंधाय,
यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चात् अर्चयेत् एव वा एव माम् पृथक भाव सा राजस। पृथक भाव प्रभुपाद जी लिखते हैं। मैं बोलता हूँ विषयान अभिसंधान, विषयों के प्रति आसक्ति रखता है, उसको फेम चाहिए, मैं ऐसा महान भक्त हूँ, ऐसा वैसा, मैं दानी हूँ, मेरा नाम लगना चाहिए, यश ऐश्वर्य में बाबा बहुत धन इकट्ठा करना चाहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है वो रजोगुणी भक्ति है, रजोगुण भक्त है, रजोगुणी है। पृथक भावा प्रभुपाद जी लिखते हैं, पृथक भावा का मतलब मेरा इंटरेस्ट और कृष्ण भगवान का इंटरेस्ट अलग रखने का, उसको बोलते हैं पृथक भाव। ऐसा पृथक भाव रखते हैं वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पृथक भाव का मतलब मैं कृष्ण को वर्शिप करूंगा, कृष्ण का इंटरेस्ट मुझे, कृष्ण इंटरेस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान मेरा जो इच्छाएं हैं, मुझे धनी बनना चाहिए, मुझे यशस्वी बनाना चाहिए, इसलिए भक्ति के बदले में वो कुछ मांगता है, कुछ मांगता है। फिर ऐसा भक्ति को रजोगुणी भक्ति है ना, रजोगुणी है। और कर्म निर्हारणस्य यदत्तान् परस्मिन् तदर्पणम् यजेन यस्तैव्यं एव वा मयि कुर्यात् सा सात्विका। सत्वगुण में भी पृथक भाव भगवान बोल रहे हैं। पृथक भाव का मतलब शुद्ध भक्ति नहीं करता है, लेकिन ऐसा उन्होंने जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण को अर्पण कर देता है, उसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है। कर्म निर्हारणस्य या दत्तम परस्मिन तद अर्पणम, कृष्ण को अर्पण कर देता है, लेकिन अपना इच्छा का काम करता है ना। ये आप लोग ये डिफरेंस समझना। इसलिए कपिल भगवान बोलते पृथक भाव सा सात्विकी। पृथक भाव है, वो भी पृथक भाव है क्योंकि कृष्ण का भक्ति नहीं करता है डायरेक्ट, वो कर्म करते हैं, ऑक्यूपेशन ड्यूटी करते हैं स्वधर्म, और उसका फल भगवान को दे देते हैं। और शुद्ध भक्ति का, विशुद्ध सत्व में जो भक्ति का वर्णन करते हैं, ये तीसरा स्कंद 29 चैप्टर है, आप आएगा। मद्गण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशया मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बुज लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणम उदाहृतः अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं। मत गुण श्रुति मात्रेण, मेरा गुणों का श्रवण करते ही जैसा गंगा नदी बिना इंटरप्शन बहती है समुद्र के तरफ, गंगा सागर समुद्र से मिलने के लिए, वैसा मनोगतिर अविच्छिन्न, उनका मन कृष्ण के भगवान के प्रति प्रवाह करता है। मनोगतिर अविच्छिन्न लक्षण भक्ति योग से निर्गुण से, ऐसा निर्गुण भक्ति है, ऐसा भक्ति निर्गुण भक्ति है। अहेतुकी, अहेतु का मतलब कोई कारण नहीं है, बस कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करके कोई नहीं मांगता है, कुछ भी चीज नहीं मांगता है, बस कृष्ण के प्रति प्रेम है और कृष्ण भक्ति करता है। अहेतुकी अव्यवहिता, विदाउट एनी इंटरप्शन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गंगा नदी गंगोत्री से स्टार्ट होके, गोमुख से स्टार्ट होके इतना जोर से बहती है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और गंगा सागर में समुद्र से मिलने के लिए आतुरता रखती है, वैसा ही हम कृष्ण को मिलने के लिए आतुरता रख के भक्ति करना चाहिए।
और कुछ विचार प्रकट नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी है ना, सालोक्य सामीप्य श्रास्ति सारूप्यैक यत् यत् उता दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त सालोक्य सामीप्य शास्त्री सारूप्य ये सारे मुक्ति भी वो लोग नहीं चाहते हैं यदि मेरा सेवा के बिना ऐसा मुक्ति मिले आते हैं। ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी बहुत बार कोट किए थे, चैतन्य महाप्रभु भी कोट किए थे इस श्लोक मत और सएव भक्ति योगाख्य सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतम नाति व्रजेन त्रिगुणान मद्भाव उपपद्यते। बहुत ही शुभ। ऐसा भक्ति जो करता है, ऐसा भक्ति करता है जो 3 गुणों से परे है, 3 गुणान नाति व्रजेन 3 गुणान मद्भावम उपपद्यते, मेरा जैसा बन जाता है। कृष्ण भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, आत्माराम है, आत्मतृप्त है, आत्मतृप्त है। ऐसा भक्ति करने से, निर्गुण भक्ति करने से हम भी कृष्ण जैसा बन जाते हैं। फिर बाद में बाकी श्लोकों में अभी टाइम नहीं है, वर्णन करते हैं कपिल भगवान ऐसा भक्ति कैसा करने का। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। फिर ऐसा प्रभुपाद जी ऐसा निर्गुण भक्ति हमको दिए हैं। हमको छोटी छोटी चीज है ना, मांगना नहीं चाहिए भगवान से, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। फिर ऐसा करने से हम भी आत्माराम बन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई शंका है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे मंगेरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। एज यूजुअल प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आत्मा राम और वो सब जो गुण भक्तों के कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं। प्रभु जी मुझे एक ऐसे पूछना था कि हम जब, अगर मेरे ही बारे में बात करूं तो ऐसा होता है प्रभु जी कि आत्मा राम की भी यहाँ पे बात हो रही थी, हम कुछ समय तक भगवान की भक्ति में रह सकते हैं, है ना, जब हम मॉर्निंग साधना कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम रजोगुण में आ जाते हैं प्रभु जी, उसके बाद फिर हम तामसिक में भी आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें प्रभु जी? क्योंकि गृहस्थ होते हैं तो फिर हमें हर चीज में हमारा अननोइंगली डाइवर्जन होते रहता है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट एंड हाउ टू बी ऑलवेज in the guna which is expected from a bhakta? इसका आंसर कपिल भगवान ही देते हैं, निषेवतेन अनिमित्तेन, स्वधर्म स्वधर्म महीयेश और क्रिया योगेन सस्तेन नाति हिंसेन नित्यशः। आप जो भी काम करते हैं निषेवतेन अनिमित्तेन, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स आप काम करेंगे। आप जो भी सेवा करते हैं, जैसे कि आपका स्वधर्म है, एक पत्नी हो या आप जो भी है, आपका स्वधर्म का पालन करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। निषेवतेन अनिमित्तेन स्वधर्म महीयश। स्वधर्म ग्रेट स्वधर्म है। जो भी आपका स्वधर्म है, आपने निम्न नहीं समझना नहीं चाहिए, वो ग्रेट है वो। स्वधर्म में महीयश है। और भक्ति योग क्रिया योगे न सस्तेन। क्रिया योगा मतलब भक्ति योग है, भक्ति योग में नियुक्त होना चाहिए। और नाति हिंसेन नित्यशः, विदाउट कमिटिंग वायलेंस।
नारद मुनि सबसे उत्तम धर्म है दूसरे जीवों को कष्ट दिए बिना धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा करना है। फिर मैदिष्ण्या दर्शन स्पर्श स्तुति पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद भावनया सत्वे असंगमेन च। फिर माई दिशना मेरा डीटीज को टच करना चाहिए। माई दिशना दर्शन स्पर्श दर्शन करना चाहिए, टच करना चाहिए। और स्तुति पूजा स्तुति अभिवंदने पूजा करनी चाहिए और मेरा सामने मेरा डीटी के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर्स ऑफर करना चाहिए और मुझे सारे जीवों में देखना चाहिए। भूतेषु मद भावनया सारे जीवों को मेरा पार्ट एंड पार्सल लेकर के समझना चाहिए और उसके हिसाब से उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा करने से आप जिधर भी हो आप रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। यस प्रभु जी, वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब मुझे समझ आया कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई हमें रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं करनी है। ऐसा कार्य या करना है जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो और या हमेशा भगवान की पूजा, दर्शन, प्रार्थना हमेशा भगवान से करनी चाहिए या और सारे जीवों को देखना चाहिए कि ही इज अ लॉर्ड्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लॉर्ड और उस भाव वेरी से ही नाइस, सारे जीवों से हमें वार्तालाप करना चाहिए। वेरी थैंक यू नाइस। सो मच। श्रद्धा से सुनाया आपने। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, also, can you share which shloka is this? I will share it in the group also. Very nice थर्ड कैंटो instructions. 29 चैप्टर 29th. थर्ड या फर्स्ट 15 श्लोकास। Okay, okay. I will search and I will send it on the group. या Thank you, Prabhu. Thank you. हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। थैंक यू वंस अगेन रामरूप प्रभु जी, आपका समय देने के लिए, आपका संग देने के लिए। हरे एंड ऐसे कृष्ण। ही रिक्वेस्ट है, आप देते रहिए प्रभु जी, अपना संग देते रहिए और हम लोग जरूर। का उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वंदे च पतितानां पतितानां। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। इसका गोविंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।